तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. Today we will discuss about the unit number 3, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट्स। मीडिया और उसका किरदार यानी कि उसके असरात लोगों के ऊपर क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू or tell you or introduce you about the role of media or what is media. Media is a very integral part of the society. It has the power of influencing the viewers' thinking and making them think of things or situations which might not even be true. Today, we are living in a global village where the mass media are an important source of information about what is going on in the world. The effects of media on society can be positive as well as negative. It has effect on their behavior. Media plays a very important role in shaping the traits of people. It affects our modern life in almost every way. Media not only include electronic media but it also includes the print media, newspaper, magazines, brochures, pamphlets, books, media channels, social websites like Facebook and Twitter are all means of communication. Access to things and information has now become very easy for audience. Media is considered as a fourth pillar of any society and thus it represents the society or the country in all aspects which is political, social and economical. It can make people change their opinions as they have access and this gives it a lot of strength. This chapter tells us that media can mold the opinion and mindset of people. It has a deep impact on the lives of people. Media has turned the world into a global village. It plays very important role in society. It keeps us well informed of different happenings and events taking place in our country and other countries. It brings news to us from the furthest corner of the world so we feel connected with the whole world. There are two types of media, electronic media and print media. Media also provides a great source of entertainment. Moreover, media plays a constructive role. It can help us in eradicating many social evils. It can make those accountable who consider themselves untouchable. So, we come to the conclusion that media has a corrective impact if it works honestly. So, students, this was a brief introduction about the chapter Media and its impacts. Now, we are going to translate the chapter. This chapter was written by the author in the form of some conversation between a teacher and some students of her class. First of all, Miss Aisha is the favorite teacher of class 9. The students eagerly attend her class. मिस आयशा 9वीं जमात की पसंदीदा टीचर हैं। तालबात उनकी क्लास
क्लास में बड़े शौक़ से हाजिर होती हैं या उसको बड़े शौक़ से अटेंड करती हैं। मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम with her usual smile, greets the students and takes the roll call. मिस आयशा अपनी आदत के मुताबिक या हस्बे मामूल मुस्कुराहट के साथ कमरा जमात में दाखिल होती हैं, तालबात को सलाम करती हैं और हाज़िरी लेती हैं। It is their tutorial day. The students are all geared up. They know what is about to come and they are prepared for it. ये उनका पढ़ाई का दिन है। तालबात पूरी तरह से तैयार हैं। वो जानती हैं कि क्या होने वाला है और वो उसके लिए तैयार हैं। Shall we start? She asks politely. क्या हम शुरू कर सकते हैं? उन्होंने नरमी से पूछा। यहाँ पर टीचर जो हैं वो क्वेश्चन कर रही हैं स्टूडेंट्स से, तो स्टूडेंट्स जवाब दे रहे हैं यस, बिल्कुल। द स्टूडेंट नॉट, स्टूडेंट्स ने जवाब दिया। टीचर, अब टीचर क्या कह रही हैं? ओके, एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज़ द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट्स। अच्छा, जैसा कि हमने पहले से फ़ैसला कर लिया था कि आज की क्लास में बहस का मौजू मीडिया का किरदार और उसका असर होगा। टू स्टार्ट विद, लेट मी स्टेट क्लियरली दैट media is the most powerful mode of communication. It shares news and information with the people. Sometimes media spreads false news, but generally it informs us about the facts around us. इसे शुरू करने के लिए मुझे वाज़े तौर पर कह लेने दीजिए कि मीडिया इजहार ख्याल का इंतहाई ताकतवर ज़रिया है। ये लोगों को ख़बरें और मालूमात देता है। कभी कभार मीडिया झूठी ख़बरें फैला देता है, लेकिन आम तौर पर ये हमें हमारे इर्द गिर्द के हक़ाइक़ से आगाह रखता है। स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ क्वेश्चन इन द ब्लॉक, गेस द मीनिंग ऑफ ट्यूटोरियल। सो द आंसर इज़ गिवन। ट्यूटोरियल मीन्स अ पीरियड ऑफ टीचिंग एंड डिस्कशन विद अ ट्यूटर। ट्यूटोरियल का मतलब होता है पढ़ाने का एक पीरियड जिसमें उस्ताद के साथ बहसो तकरार हो या जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में डिस्कशन करें, उसको ट्यूटोरियल कहते हैं। नाउ देयर आर डिफ़िकल्ट वर्ड्स, देयर प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स अबाउट द पैराग्राफ विच वी स्टडी। फर्स्ट वन इज़ फेवरेट। फेवरेट मीन्स पसंदीदा, चॉइस और स्पोर्ट। ईगरली, शौक़ से, कीन डिज़ायर। अटेंड, हाजिर होना, टेक पार्ट इन। यूजुअल, आम तौर पर या हस्बे मामूल, हैबिचुअल। ग्रीट, खुशामद कहना या सलाम दुआ करना, वेलकम। रोल कॉल, हाज़िरी, कॉलिंग आउट। ट्यूटोरियल, पढ़ाई वाला मीन्स लेसन। गियर अप, तैयार होना, रेडी हो जाना। पोलाइटली, नरमी से, एलिगेंट। डिस्कशन, बहस, कन्वर्सेशन। कम्युनिकेशन, बातचीत, कन्वेंस। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने पिछले ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स में से कुछ सेंटेंसेस बना दिए हैं। ये सेंटेंसेस बेटा इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपकी जो वर्बल है उसमें वर्बल कम्युनिकेशन में बेहतरी आ सके। सेंटेंस फॉर्मेशन का आपको पता चल जाए कि आपने कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है। जब आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाएगी तब आपके लिए सेल्फ राइटिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस बनाकर दे दिए गए हैं, आप इनको देखें और बाकी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स रह गए हैं उनकी आपने सेंटेंस फॉर्मेशन खुद से करनी है। ये आपका होमवर्क है। फर्स्ट वन इज़ फेवरेट। सो सर अली इज़ माई फेवरेट टीचर। ईजी कोई भी सेंटेंस बना लें। ईगरली, द क्राउड मूव ईगरली फ्रॉम balcony to porch. Attend, she attends a marriage party. आप देख रहे हैं इजी मतलब कि वर्डिंग के अंदर आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। यूजुअल, आम तौर पर। विल मीट एट द यूजुअल प्लेस, हम उसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर हम
आम तौर पर यह हस्बे मामूल मिलते हैं। ग्रीट, शी डिड नॉट इवन गेट अप टू ग्रीट हर, मिलना, सलाम दुआ करना। नाउ वी मूव ऑन द अदर पैराग्राफ। डू यू एग्री, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं या इत्तेफाक करते हैं? स्टूडेंट्स, यस वी डू, जी हाँ हम करते हैं। स्टूडेंट नंबर 1, आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट, मैं इसके अंदर थोड़ा सा मज़ीद इजाफ़ा करना चाहूँगी। टीचर, यस श्योर, बिल्कुल आप करें। स्टूडेंट, मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज of the world, their feelings and opinions and expressed through it. Media attracts the attention of a very large audience. मीडिया दुनिया के बारे में इल्म बांटने में लोगों की मदद करता है। उनके जज्बात और आरा का इजहार इसके ज़रिए ही होता है। मीडिया वसी पैमाने पर सामीन की तवज्जो को मबजूल करता है। Have you noticed that the first thing we do soon after entering the house is to switch on the television? क्या आपने गौर किया है कि वो पहला काम जो हम घर में दाखिल होने के फ़ौरन बाद करते हैं वो टीवी चलाना होता है। टीचर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई शक नहीं है। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन इन द ब्लॉक। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज मीडिया प्रोवाइड? मीडिया किस किस्म की मालूमात हमें देता है? इट कीप्स अस वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट हैपनिंग्स एंड इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन आवर कंट्री एंड अदर कंट्रीज़। मीडिया also provides a great source of entertainment. ये हमारे मुल्क और दीगर ममालिक में होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात से हमें बाखबर रखता है। मीडिया हमें एक उम्दा किस्म की तफरीह भी मुहैया करता है। Now there are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonyms about the paragraph. Share, share mean बताना, serving, knowledge, ilm, education, feelings, जज्बात, emotions, opinions, आरा, ख्याल, thinking, express, इजहार कर देना, demonstrate, डिमॉन्स्ट्रेट भी किसी चीज़ को खोल कर बयान कर देना। अट्रैक्ट, मतवज्जो करना। इंटरेस्टिंग, ऑडियंस, हाजरीन, स्पेक्टेटर्स। स्टूडेंट्स, दीज आर वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स आर गिवन टू ओवरकम योर प्रॉब्लम्स, सो प्लीज़ कंसिडरेट इट। These are some sentences, sentence formation from the previous difficult words. First one is share. They want to share their experience with me. Knowledge, she has a good working knowledge. Feelings, I have a weird feeling about this place. Opinion, I want your opinion on this point. Express, I can express myself in good English. Some sentences are given and others are up to you. आप बाकी जितने भी सेंटेंसेस रह गए हैं, जितने भी वर्ड्स डिफ़िकल्ट वर्ड्स, आपके लिए ये होमवर्क है कि आप उनको अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन में इस्तेमाल करेंगे, आप उनके सेंटेंस बनाएंगे। स्टूडेंट नंबर 2, लेट मी से दैट मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस बट ऑल्सो एंटरटेन्स अस. मुझे ये कहने दीजिए कि मीडिया हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। ये ना सिर्फ हमें मालूमात देता है बल्कि हमें तफरीह भी फराहम करता है। टीचर, एब्सोल्युटली राइट. वेल, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? टीचर, बिल्कुल ठीक, अच्छा किया आप। क्या आपको दो बड़े ज़राए इब्लाग के बारे में कोई इल्म है? ज़राए इब्लाग मीन्स कम्युनिकेशंस, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिनके ज़रिए से हम रब्ता कर सकें एक दूसरे के ज़रिए। स्टूडेंट नंबर 3, देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया. द मीडिया includes film, radio, television, internet, books, magazines and newspapers. It provides us information as well as entertainment.
अबलाग के दो ज़राए हैं, ये तरक्याती इबलाग और इशाती इबलाग हैं। कम्युनिकेशन में फ़िल्म, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, किताबें, रिसाले और अखबारात शामिल हैं। ये हमें मालूमात के साथ साथ तफरीह भी मुहैया करते हैं। टीचर: गुड, बहुत अच्छा। इट्स थ्रू मीडिया दैट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज. There is coverage of all the important events of the world on television. We can have an easy access to all kinds of information through media. बिल्कुल, ये मीडिया की बदौलत ही है कि दुनिया एक आलमी गांव बन गई है। टेलीविज़न पर दुनिया के तमाम अहम वाक़यात को नशर किया जाता है। हम मीडिया के ज़रिए तमाम किस्म की मालूमात पर आसानी से रसाई हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट नंबर 4, कैन वी से दैट द वर्ल्ड इज़ जस्ट अ क्लिक अवे? क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया महज चुटकी भर की दूरी पर है? टीचर: मे बी, वेल, वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट? टीचर कह रही हैं हो सकता है। अच्छा, क्या कोई दूसरी स्टूडेंट इस बात पर कुछ कहना चाहेगी? मिस आयशा पॉइंट्स टू द स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड. मिस आयशा ने सबसे पीछे बैठी हुई तालबा की तरफ इशारा किया. These are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonyms about the paragraph. First one is inform, इत्तला देना, tell, entertain, लुत्फ़अंदोज़ होना, amuse, information, मालूमात, facts, coverage, नशरियात, रिपोर्टिंग, इवेंट्स, वाक़या, ओकेजन, एक्सेस, रसाई, अप्रोच, क्लिक अवे, इंतहाई नज़दीक, नो लॉन्गर. There are some difficult words and their sentences. First one is inform. I'll inform you about my entertain. We hired a magician to entertain the children. Information. He gave me helpful information. Student number 5. Madam, in my opinion, media plays a very constructive role for the society. It raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights. फिफ्थ स्टूडेंट जो हैं वो अपनी टीचर को बता रही हैं कि टीचर, मेरी राय में मीडिया माशरे के लिए एक बहुत ही तामीरी किरदार अदा करता है। ये बहुत से माशरती मसाइल जैसे कि बदउनवानी, दहशतगर्दी, मंशियात की लत और इंसानी हकूक़ की पामाली के बारे में शऊर पैदा करता है। टीचर: यस, यू आर राइट, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। स्टूडेंट नंबर 6, मीडिया हैज़ also become a mouthpiece of the downtrodden. स्टूडेंट नंबर 6 क्या कह रही हैं कि मीडिया सितम रसीदा अफराद या ऐसे लोग जो कि बहुत गरीब होते हैं उनका तर्जुमान भी बन चुका है। टीचर: यस, वेल सेड, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट मीडिया इज़ द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी. जी हाँ, आपने ठीक कहा। यह कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया इंतहाई मुहतात इदारा है जो माशरे के हर तबके पर निगाह रखता है. थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज़, इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल. दैट इज़ वाई मीडिया हैज़ बिकम an integral part of our lives. Now I would invite one of you to sum up the discussion. मुबाहसों, ख़बरों और टॉक शोज़ के ज़रिए ये हर एक को जवाबदेह और ज़िम्मेदार बनाता है. यही वजह है कि मीडिया हमारी ज़िंदगियों का बुनियादी हिस्सा बन चुका है. अब मैं आप में से किसी एक को दावत दूंगी कि बहस पर अपनी राय दें. There is a question in blog, which is your favorite TV program and why? So you can answer in this way. The TV program I like the most is, in this blank you should write your favorite program name. It is my favorite TV program because it, and here
You may write the reason of your favorite program, that why you like it. There are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonyms. First one is constructive. तामेरी means useful. Raises पैदा करना, बढ़ाना, appraise. Awareness आगाही, recognition. Recognition का मतलब भी जानना होता है और awareness का मतलब भी आगाही यानी कि जानना. Terrorism दहशतगर्दी mean threat. Downtrodden पिसे हुए लोग यानी कि गुर्बत के मारे हुए जो लोग होते हैं, oppressed people. Invite मदऊ करना, समन. समन का मतलब भी बुलाना होता है और इनवाइट का मतलब भी बुलाना होता है. Word sentences, there are some sentences are given. Constructive, the meeting was very constructive. Raise, we raised chickens on our farm. Awareness, we are trying to raise public awareness for heart diseases. So students, there are some words are given and the sentence formation, and further you should try to make sentence formation to enhance your self-writing or writing skills. Now there is last paragraph, student number 1 again. I would conclude the discussion by saying that media can play positive role and has a corrective impact if it works honestly. मैं ये कहकर इस बहस को ख़त्म करूँगी कि मीडिया मस्बत किरदार अदा कर सकता है और इस्लाही असर भी मरतब करता है अगर ये ईमानदारी से काम करे. टीचर, गुड कंक्लूजन, अच्छा नतीजा निकाला है. आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू have participated this discussion and have expressed yourselves very well. The bell rings. Miss Aisha says goodbye to the class and leaves. मैं खुश हूँ कि आप सब ने इस बहस में हिस्सा लिया और बड़े अच्छे तरीके से अपने ख्यालात का इजहार किया. घंटी बजती है. मिस आयशा जमात को खुदा हाफिज़ कहती हैं और चली जाती हैं, मीन्स रुखसत हो जाती हैं. There are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonyms about the last paragraph. Conclude, नतीजा निकालना, finish. Corrective, इस्लाही, remedial. Impact, असर, effect. Participate, हिस्सा लेना, engage करना. Honestly, ईमानदारी से, fairly. And these are the sentence formation. First one is conclude. He concluded the good points from conversation. Next one is corrective. He has received corrective surgery. Impact. The new teacher made an immediate impact on her students. So students, I hope आपको इस चैप्टर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, कोई मीनिंग समझ ना आ रहा हो, तो आप इन तमाम स्लाइड्स को दोबारा से देख सकते हैं और यहाँ से आपको जो वर्ड समझ ना आए आप उसको अच्छे तरीके से देखें. यहाँ पर हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, सिनोनियम्स, इवन सेंटेंसेस भी दिए गए हैं. तो आपका ये होमवर्क है कि आपने जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं इन तमाम को अच्छे तरीके से याद करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना है, अपनी वर्बल स्किल्स को बेहतर बनाना है और सेंटेंस फॉर्मेशन के ज़रिए अपनी राइटिंग स्किल्स को भी बेहतर बनाना है. ये आपका होमवर्क है कि आप जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं उनके सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर खुद से सेंटेंस बनाने की कोशिश करें. बच्चों, आपके लिए हर मज़मून की वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं. आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं. अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियोस से आगाह रहें. शुक्रिया.